السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، سب سے پہلے آپ کو بتائیں علی ناصر رضوی کی بطور IG اسلام آباد تعیناتی کا معاملہ متنازع ہو گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی DIG آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کی خدمات وفاق کے سپرد نہیں کی گئیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے علی ناصر رضوی کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ سابق IG اکبر ناصر کے بعد عہدہ چھوڑنے کے بعد 3 دن سے IG اسلام آباد کا عہدہ خالی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں علی ناصر رضوی کی بطور IG اسلام آباد تعیناتی کا معاملہ متنازع ہو گیا ہے۔ حکومت پنجاب کی DIG آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی کی خدمات وفاق کے سپرد نہیں کی گئیں۔ حکومت کا عید سے قبل پیٹرول کے بعد شہریوں کو بجلی کا زوردار جھٹکا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی۔ نیپرا نے بجلی ₹2.75 فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نیپرا نے بجلی ₹2.75 فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کے مد میں مہنگی کی گئی۔ صارفین سے اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا۔ اضافے کا صارفین پر 85 ارب 20 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ سینٹ انتخابات کے لیے میدان آج سجے گا۔ الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لیں۔ 18 امیدوار بلا مقابلہ منتخب۔ اب صرف 30 نشستوں پر الیکشن ہوں گے۔ الیکشن میں کل 59 امیدوار مد مقابل ہیں۔ انتخابات کے لیے پولنگ صبح 9 سے شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ ایوان بالا 96 اراکین پر مشتمل ہوگا، جن میں سے 23 اراکین 4 صوبوں اور 4 اسلام آباد سے ہوں گے۔ ایک صوبے کے لیے مختص کردہ 23 سیٹوں میں 14 جنرل نشستیں، 4 خواتین کے لیے، 4 ٹیکنوکریٹس اور 1 اقلیتی رکن کے لیے مختص ہے۔ پنجاب سے مسلم لیگ نون سینٹ میں مزید 5 نشستیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ گئی۔ محسن نقوی، احد چیمہ، پرویز رشید، ناصر محمود اور طلال چودھری اور دیگر بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے۔ جنرل نشستوں پر مسلم لیگ نون کے 5 سنی اتحاد کونسل کے 2 امیدوار بھی بلا مقابلہ۔ ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستوں پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، مصدق ملک اور PTI کی ڈاکٹر یاسمین راشد مد مقابل۔ خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر فائزہ احمد، انوشا رحمان، بشرا انجم بٹ اور سنم جاوید کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ خلیل طاہر اور آصف اسحاق اقلیت کی نشست پر مد مقابل ہیں۔ سندھ کی صورتحال انتہائی دلچسپ ہوگی، جہاں فیصل واپٹا نے آزاد امیدوار کی حیثیت سے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں۔ سندھ میں 7 جنرل نشستوں پر 11 امیدوار مد مقابل ہیں۔ خواتین کی 2 مخصوص نشستوں پر 3 امیدوار انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ ٹیکنوکریٹس کے لیے 2 نشستوں پر 4 امیدواران اور اقلیت کے لیے مخصوص 1 نشست پر 2 امیدوار میدان میں ہیں۔ پیپلز پارٹی فیصل واپٹا کو ووٹ دینے کا فیصلہ کرتی ہے تو وہ 7 جنرل سیٹوں میں سے کم از کم 5 میں کامیابی حاصل کر سکتی ہے۔ کل ملا کر 10 سیٹوں پر کامیابی سمیٹ سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی انتہائی دلچسپ انتخابات کی توقع کی جا رہی ہے، جہاں اراکین اسمبلی 7 جنرل نشستوں سمیت 11 سینیٹرز کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ 28 مارچ کو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اجلاس بلا کر مخصوص نشستوں پر حلف نہ لیا تو صوبے کی حد تک سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا میں ووٹنگ نہیں ہوگی، لہٰذا PTI کے کم از کم 7 امیدواران کو سینیٹرز منتخب ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑے گا۔ سینٹ انتخابات کے لیے 4 مختلف رنگوں میں بیلٹ پیپرز چھاپے گئے ہیں۔ جنرل نشستوں کے لیے سفید پیپرز، ٹیکنوکریٹ نشستوں کے لیے سبز بیلٹ پیپرز، خواتین کے نشستوں کے لیے گلابی اور اقلیتی نشستوں کے لیے پیلے رنگ کے بیلٹ پیپرز استعمال ہوں گے۔ جماعت اسلامی، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ایوان بالا میں نمائندگی سے محروم ہو جائیں گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ لارجر بینچ بدھ کو صبح 11:30 بجے از خود نوٹس کیس پر سماعت کرے گا۔ بینچ کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جہجہ خان آفریدی، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان بینچ میں شامل ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چند روز قبل سپریم جوڈیشل کونسل کو خط میں عدالتی معاملات میں دخل اندازی کا معاملہ اٹھایا تھا۔ یہ خط اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفت امتیاز کی جانب سے لکھا گیا۔ خط میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی کے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ تصدق جیلانی نے ہائی کورٹ ججز کے خفیہ ادارے پر الزامات کی تحقیقات کے لیے بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں۔
जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने बजरिया खत फैसले से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया, जिसमें कहा गया है कि मुनासिब होगा चीफ जस्टिस इदारे की सतह पर इस इशू का फैसला करें। उन्होंने इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत अरसाल कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने फैसले से आगाह किया। उन्होंने खत में कहा है कि खुद पर एतमाद करने पर वज़ीर आज़म और काबीना का मशकूर हूँ, चीफ जस्टिस और सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का भी मशकूर हूँ, ताहम मैं जुडिशल कमीशन की सरबराही नहीं कर सकता। खत के मतन में उन्होंने कहा है कि मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत पढ़ा है। उन्होंने लिखा कि 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिखे गए खत के मंदरजात पढ़े हैं। जजेस के खत में इदारा जाती मुशावरत की इस्तदा की गई है। 6 जजेस का खत आर्टिकल 209 के जुमरे में नहीं आता। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने कहा है कि मामले को जुडिशल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट को खुद देखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस मामले को इदारा जाती सतह पर खुद देखें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए दरख्वास्तें तलब कर लीं। कहा कल नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। पीटीआई के उमर अजूब ने कहा जजेस खत से मुतल्लिक तहरीक इल्तिवा जमा कराई है, ऐवान में बात करने की इजाजत दी जाए। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था ये मामला अदालत में है, बेंच भी बन चुका है। असद कैसर ने कहा जजेस के खत लिखने का मामला इंतहाई हसास है, कौमी असम्बली का ऐवान मामले पर बहस करे। स्पीकर ने रोलिंग देते हुए कहा जजेस खत का मामला जेर समात है, कौमी असम्बली में बहस नहीं हो सकती। हाई कोर्ट के 6 फाजल जज साहिबान ने एक लेटर लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुखातिब किया है और उनको लिखा है, उसके ऊपर यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने इस मामले पे अज खुद नोटिस लेते हुए एक बेंच मुकर्रर कर दिया। सर ये एक सेंसिटिव इशू है, आप इस पे डिबेट करने दें ताकि दोनों साइड से उसके ऊपर डिबेट आ जाए। असद साहब जो इशू है ना जी सब जुडिस होने का, उसको बड़े सेंसिटिविटी से देखना पड़ेगा और अगर हुआ तो जरूर देंगे, मगर अगर सब जुडिस है तो आई थिंक हम इंतजार करेंगे उसका। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि चीफ जस्टिस के कहने पर जजों के खत पर कमीशन बनाया गया था। तसद्दुक जिलानी के इनकार के बाद सो मोटो नोटिस लिया गया है। उन्होंने कहा 6 जजों से पहले शौकत सिद्दीकी ने भी बयान दिया था। नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाने में उस वक्त के चोर और चौकीदार शामिल थे। फैजाबाद धरना केस का मामला भी सामने आना चाहिए। सब एक साथ बैठने को तैयार हैं सिवाय बानी पीटीआई के। जब तक बानी पीटीआई का सियासी वजूद है वो किसी से बात नहीं करेगा। जजों को डराने धमकाने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने तोशा खाना तहाइफ केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कहते हैं कि सजा के खिलाफ अपील ईद के बाद मुकर्रर करेंगे। इसी हवाले से इब्राहिम अब्बासी की ये रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई की इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तल कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली अपील की समाअत की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत पेश हुए। नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने अली जफर से कहा कि अगर आप अपीलों पर दलाइल देंगे तो हम आपको नहीं सुन सकते। साइफर केस में अपीलों को सुना जा रहा है, दोनों अपीलों को एक साथ नहीं सुना जा सकता। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सलमान सफदर ने कहा था साइफर अपीलों पर वो आधे घंटे के दलाइल देंगे, मुझे भी इस केस में आज दलाइल देने दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप सजा मुअत्तली के ऊपर दलाइल देना चाहते हैं तो हम सुन लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर बोले फैसले का जायजा लिया है, ये सजा मुअत्तली का केस है। अदालत ने कहा कि नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौकिफ है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के बयान की रोशनी में सजा मुअत्तल कर दी। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। दोनों मुल्जिमान ने एहतसाब अदालत के सजा के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की सजा मुअत्तली हक और सच की फतह है। झूठ हमेशा नहीं रहता। मुल्क में इतना बड़ा इंतखाब हो चुका, उसके बावजूद बानी चेयरमैन को वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं। क्या ये जुल्म और फस्तायत नहीं है? बानी चेयरमैन को आम कैदियों जितना हक मिलना चाहिए। इतना बड़ा इलेक्शन हो गया और इमरान खान साहब को इजाज़त नहीं थी कि वो अपने सियासी ज़ुमा से मिले, असद कैसर साहब से मिलते, उमर अयूब खान साहब से मिलते, मेरे से मिलते और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे मिलते। पूरा इलेक्शन हो गया, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में सवाए बैरिस्टर गौर के कोई किसी सियासी शख्सियत को मुलाकात की इजाज़त नहीं। ये क्या फस्तायत नहीं है? ये क्या जुल्म नहीं है? तो इमरान खान साहब को कम अज़ कम इतना हक मिलना चाहिए जितना किसी आम कैदी को मिलता है। आपको मुबारक हो। देखें, झूठ सदा नहीं रहता, जुल्म सदा नहीं रहता।
इंशाल्लाह हक और सच की जीत हुई है और मजीद भी होगी। डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने नाकिस कारकर्दगी पर थाना अपारा और सिहाला के एसएचओज नौकरी से बर्खास्त कर दिए। कमजोर कारकर्दगी पर 7 थानों के एसएचओज को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वालों में थाना मारगिला, रमना, संगजानी, नेलोर, कुराल, लोहीभेर और हुमक शामिल हैं। बाकी तमाम एसएचओ को कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए 4 दिनों का वक्त दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा, करप्शन, गैर इखलाकी रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइंदा मेरिट पर और अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ही एसएचओज लग सकेंगे। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा ने पार्टी अरकान असम्बली में किसी किस्म के इख्तलाफात को मुस्तरद कर दिया। एबीएन न्यूज से गुफ्तगू में कहा, जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता और बानी पीटीआई को रिहा नहीं किया जाता, एहतजाज जारी रहेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ना मिली तो भरपूर एहतजाज करेंगे। इख्तलाफात किसी किस्म के नहीं हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हिकमत अमली के ऊपर इख्तलाफ राय छोटा मोटा माइनर मौजूद होता है, जिसके ऊपर कुछ अराकीन ज़रा आउटस्पोकन हैं, वो अपनी राय का इजहार कर देते हैं। अदरवाइज़ इख्तलाफ राय कोई नहीं है, बिल्कुल सब मुश्तरक हैं। जब तक हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलता और इमरान खान साहब को बाहर रिहा नहीं किया जाता, ये एहतजाज जारी रहेगा। ज़ाहिर है हर चीज़ हमने हुकूमत के पास रही ना रहने देनी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर मौजूद है और आपको पता है कि एक चेक एंड बैलेंस होता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन को दी जाती है, तो अपोजिशन को ही मिलेगी इंशाल्लाह। तो नहीं मिलेगी तो एहतजाज करेंगे भरपूर तरीके से करेंगे। वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात की। मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पार्टी मामलात, केपी के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकात में गुज़श्ता रोज़ निकाली गई रैली के हवाले से भी बातचीत की गई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल समेत ज़ेर समात मुकदमात पर भी बातचीत की गई। इलेक्शन कमीशन ने आसिफा भुट्टो जरदारी का बतौर रुकने कौमी असम्बली कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिफा भुट्टो कौमी असम्बली के हल्के NA 207 शहीद बेनज़ीराबाद 1 से बिला मुकाबला कामयाब हुई हैं। आसिफा भुट्टो के मुकाबले में मौजूद तीनों उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए थे। आसिफा भुट्टो ने NA 207 में कामयाबी के साथ ही पार्लिमानी सियासत में कदम रख दिया है। NA 207 की नशिस्त सदर आसिफ अली जरदारी के इस्तीफे से खाली हुई थी। बजट में फाटा के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस हैं, जबकि अखराजात बढ़कर 96 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। वजारत खजाना ने फाटा अखराजात में 30 अरब रुपए के इजाफे पर फौरी रकम अदा करने से इनकार कर दिया। केपी हुकूमत ने आइंदा बजट में फाटा के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस करने का मुतालबा कर दिया। ज़राए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वज़ीर आज़म, वजारत खजाना, FBR, वजारत तवानाई को अदायगियों के लिए खत लिख दिया है। खैबर पख्तूनख्वा को नेट हाइडल, NFC अवार्ड, फाटा अखराजात और दीगर अदायगियों में ताखीर पर केपी हुकूमत ने वजारत खजाना से NFC अवार्ड के डिफरेंशियल क्लेम में 27 अरब मांगे हैं, जबकि नेट हाइडल प्रॉफिट की मद में वजारत तवानाई से 67 अरब रुपए फौरन फराहम करने का मुतालबा किया है। वजीर आजम और वजीर आला केपी की मुलाकात के दौरान अदायगियों की यकीन दहानी के बावजूद रकम जारी नहीं हुई। वजारत कौमी सेहत के मातहत इदारे रीजनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोजेक्ट के मुलाजमीन गुज़श्ता 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। वजारत सेहत के सेक्रेटरी की नाअहली के बायस मुलाजमीन रमज़ान में भी फाकों पर मजबूर हैं। फीसों की अदम अदायगी के बायस कई मुलाजमीन के बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। फंड्स होने के बावजूद 46 मुलाजमीन गुज़श्ता 9 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। जर्मन हुकूमत की 2 बिलियन रुपए से जायद की लागत से तैयार महफूज इंतकाल खून प्रोजेक्ट लावारिस छोड़ दिया गया। रीजनल ब्लड बैंक करोड़ों रुपए मालियत से तैयार होने वाली बिल्डिंग और मशीनरी भी जंग आलूद होने लगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत से मुतल्लिक इजलास। पंजाब में ज़राअत को दरपेश चैलेंजेस का जायज़ा लिया गया। नवाज शरीफ का कहना था 4 दहाइयाँ गुजरने के बावजूद क्वालिटी सीड ना होना लम्हा फिक्रिया है। पंजाब में 37 मिलियन एरिया फिट पानी को ज़ाया होने से बचाना है। रबी और खरीफ की फसल के लिए काश्तकारों को 150 अरब कर्ज दिया जाएगा। मरीम नवाज शरीफ ने कहा हर जिला में मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर कायम किया जाएगा। इजलास में अयूब रिसर्च सेंटर के लिए 500 मिलियन का रिसर्च इंडोमेंट फंड कायम करने की मंजूरी दी गई। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एक्ट में तरमीम लाने का फैसला किया गया।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के कंट्री मैनेजर ज़ीशान अहमद शेख की मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, निजी शोबे की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा किया जाएगा। तर्जुमान वज़ारत ख़जाना के मुताबिक आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर और कंट्री मैनेजर IFC की वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मालियाती इस्तेहकाम को बढ़ाने और मुल्क के अंदर पायदार तरक्की को फ़रोग़ देने पर भी बातचीत की गई। ज़राअत, पावर सेक्टर और IT समेत ताउन की मुमकिना शोबों और सरमायाकारी के मौके पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की तरक्की के लिए आलमी इदारों की महारत और वसाइल को बरवकार लाने के अमूर भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर ख़जाना ने माली मामलात में शफाफियत और जवाबदही को यकीनी बनाने के लिए हुकूमती अज़्म को उजागर किया। तर्जुमान वर्ल्ड बैंक और IFC के नुमाइंदों ने हुकूमत की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने हिदायत की है, बरामदी कोयले पर चलने वाले तमाम पावर प्लांट्स मकामी कोयले पर मुंतकिल किए जाएं। तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स से राब्ता करके लाएअमल तैयार कर लिया जाए। वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। बरामदी कोयले पर चलने वाले तमाम पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर तवानाई ने कहा कि बरामदी कोयले पर चलने वाले तमाम पावर प्लांट्स को मकामी कोयले पर मुंतकिल करने के लिए इकदामात किए जाएं। मकामी कोयले पर मुंतकिली से न सिर्फ सस्ती बिजली पैदा होगी बल्कि दरामदी बिल में भी कमी वाक़ई होगी, जिसके समरात आवाम तक मुंतकिल होंगे। वफाकी वज़ीर ने हिदायत की कि तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर से राब्ता करके लाएअमल तैयार किया जाए। वफाकी हुकूमत का हसास मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साइबर महाज पर सिक्योरिटी इक़दाम। सदर वज़ीर आज़म ऑफिस समेत 1.5 दर्जन वजारतों इदारों के IT सिक्योरिटी ऑडिट में सेफ्टी के मुअस्सर मयारात पर पूरा ना उतरने की निशानदही की गई। सदर और वज़ीर आज़म ऑफिस समेत दीगर इदारों का IT सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल कर लिया गया। सिक्योरिटी ऑडिट में पता चला कि मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स ने महफूज इंटरनेट तक रसाई के इक़दामात को नज़रअंदाज किया। पासवर्ड मैनेजमेंट और डिवाइस कंट्रोल मैकेनिज्म जैसे इक़दामात भी नज़रअंदाज किए गए। इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने की वेबसाइट और CPEC सेक्रेटेरिएट पर साइबर हमले का भी जायजा लिया गया। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है, गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ उठाई जिस पर आलमी क़ुव्वतें हमारे खिलाफ मुतहरिक हुई। मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान में कहा, गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ JUI ने तमाम मसलहतों को बालाए ताक रख कर आवाज़ बुलंद की। हालिया इंतखाबात में हमारा रास्ता रोका गया। हमने पूरी जुर्रत के साथ अवामी तहरीक का ऐलान किया है। जोश व जज्बे के साथ हम मैदान में उतरेंगे। अगर फैसले ऐवानों में नहीं होने दिए जा रहे तो हम अवामी असम्बलियों में आवाज़ उठाएंगे। ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज़ बुध को होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी, जबकि ग़ुरूब आफ्ताब के बाद उफ़क़ पर चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा। नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी। 9 अप्रैल को चांद की उम्र 19 से 20 घंटे हो जाएगी। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद उफ़क़ पर चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से होगा। मुल्क के जनूबी इलाकों समेत ज्यादातर मकामात पर 9 अप्रैल को मतला साफ रहने का इम्कान है, जबकि शिमाली इलाकों में मतला अबर आलूद हो सकता है। 9 अप्रैल को चांद नजर आने की सूरत में ईद उल फितर 10 अप्रैल बरोज बुध को होगी। टोबा टेक्सिंग मारिया बीबी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। तहकीकाती अफसर सब इंस्पेक्टर अहमद रजा को तब्दील कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने इंस्पेक्टर अली रजा को मारिया बीबी कत्ल केस की तफ्तीश सौंप दी। इंस्पेक्टर अली रजा मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ थाना जात के SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रह चुके हैं। DPO की जानिब से IO की जिम्मेदारी मिलते ही इंस्पेक्टर अली रजा ने हक़ाइक़ की तह तक पहुँचने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर के लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से डिस्चार्ज करने के फैसले की रोशनी में वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए गए। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद नवीद खान ने वारंट मनसूख किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि ABN है कौम की सोच।